My dear students, welcome to Bioratna. My name is Chandana Sengupta. I am in teaching profession for a long time. It's a great pleasure which a teacher only can understand to be with the students to guide them hand in hand towards their goal. But there is another side to it. There are vast majority of students who can't clear NEET, and then the journey through which they pass, the depression, the pain they pass through, and the steps they take, it really hurts. You know, those students who have cleared NEET, बहुत पुराने बहुत पहले वाले बच्चे सारे कांटेक्ट में रहते हैं और बाकी बच्चों के चेहरे देखने के लिए हम तरस जाते हैं। कभी भूले भटके कहीं पे वो बच्चा दिख भी जाए, आप खुशी से उसकी तरफ बढ़ रहे हो, वो सर झुका के नज़र बचा के कहीं से निकल जाता है। आपका नीट में अगर नहीं हुआ, is that the end of everything? That means you are nothing. How to prepare for NEET in 1 month, 2 months, 3 months? Lot many videos are available on it. This is actually of no use. They are useful only to the students who have already prepared, well, and they want to get an edge over it. But for whatever reasons, not always your fault, for whatever reasons, if you have not prepared and now your exam is just 1 month, as today is 17th June, a special day. That's why I have selected this day to have this video and talk to the students. On 17th July you will be having the exam, and I can understand the pressure under which you are. तो अगर ये आपकी गलती थी, from the beginning you were not sincere, 11 से, so that won't help, na? If you want to be a doctor, then you have to work for it. You have to work, you have to earn everything what you want. That gives you satisfaction, and that due to that you take one step at each time, sure steps towards your goal. नहीं किया, नहीं हुआ, अभी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है. Then what happens? These students, they first they go for sure shot in 1 month, कैसे पूरा prepare कर ले, how to get this much marks, like that, and waste their time. Then they go under depression, ज़्यादा सोते रहेंगे, they will waste time, they will be angry at sometimes, they will be unhappy at times. This is the regular pattern with all the students. First thing, आपकी अगर तैयारी नहीं भी हुई है अभी, when you are at it, आपने सिलेक्ट किया है, आपको तैयार होना है, 10 तरह की बातें मत सोचिए कि हाँ ये हो सकता है मेरे लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा तो बहुत अच्छा था, ड्यू टू दिस रीज़न और दैट रीज़न मेरा नहीं हो पाया, अभी क्या होगा. डोंट गो फॉर दैट. When you are at it, 1 महीने में आपको लगता है कि नहीं भी हो पाएगा, this is the time when you get hold of the situation, you get hold of your emotions, और आप अपनी तैयारी में लगे रहते हो. सारी तैयारी आप करते जाते हो, तो आप में से बहुत सारे होंगे कि वो इसी में से निकाल लेंगे. For that, 1 month, there is one video on my channel that how to get 9 months preparation time in 3 months. जब 3 महीने बाकी रह गए थे, उस समय हमने डाला था. It is not that how to prepare for NEET in 3 months. No. It was not any misguiding the students. How to get more time. So it is not any
advertisement for my channel also. You can this kind of videos, this pattern is available elsewhere also. You can go for anything, but what I have told there, that is time tested, and every year we have followed that and got great results. So आप में से बहुत सारे होंगे जो इस मेंटल अपनी स्पिरिट, डोंट लेट योर स्पिरिट डैम्पन, एंड देन उसमें लग जाइए. आप में से बहुत सारे उसी में से निकाल लेंगे. निकाल लिया, बहुत अच्छा. नहीं निकाल लिया तो आप बहुत सारी पढ़ाई आपकी हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए. और ये अब आप भूलिए नहीं कि कितना प्रेशर आ गया था आखिरी के महीने में. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, this is your adolescence age, many kinds of problems are there. So if you can sort it out yourself, well and good. If you have to talk to your parents something you can't get over and you need their guidance, go for it. But get hold of the situation, get hold of your emotions, then don't let this your spirit to be dampened और लग जाओ काम में. उसके बाद ऐसे जब आप करते हो, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की ये वाला स्टेप नहीं लेते हैं, अचानक से डिप्रेशन में चले जाते हैं. अगर आपका बहुत मेहनत के बाद भी नहीं होता है, then accept ना, then accept कि okay दिस वॉज नॉट फॉर मी. मतलब आपका नहीं हुआ, इसमें आपकी मेहनत में कमी रह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. देन दैट गिल्ट विल बी देयर एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनैलिटी. मीन्स इट विल बी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. जितने भी आप बड़े हो जाओगे ना, बड़ों को देख के जैसे बहुत आप बोलते हो कि ये बड़े ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. This is all because of what steps you have taken, what path you allowed for yourself to take at this age. तो आप पूरी मेहनत से लग जाइए, उसमें पूरा कोशिश कर लीजिए. करने के बाद अगर नहीं होता है then accept कि हाँ ये मेरे लिए नहीं था लेकिन ये मेरे लिए है. अगर आप ये नहीं करते हो, दुखी हो जाते हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं था. आप इसी को ऐसे देख के पूरी ज़िंदगी भर मतलब खुद को इन्फीरियर सोचते रहोगे और नीचे 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 और नीचे जाते जाओगे. अगर ये आपके लिए नहीं था तो नहीं था. 1 or 2 years or 3 years in life is nothing. आपको इसी में लगना है. आप सोचते हो कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. टू बी अ डॉक्टर एंड अ टीचर इज़ रियली, इट इज़ नोबल प्रोफेशन जहाँ आपको बहुत बहुत खुशी मिलती है. आप मेहनत कीजिए. अगर नहीं होता है then you try to find out what is your liking. आपकी liking तो आपकी समझ में आएगी ना कि ये मुझे पसंद है. आई टेल द स्टूडेंट्स कि इवन आप जैसे हम लोग अभी हिंदी संस्कृत इसको कोई वेटेज ही नहीं देते हैं ना. आप हिंदी संस्कृत लेके भी पढ़ते हो, एमए करते हो, बहुत अच्छा करते हो, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी. यू विल बी वेल एस्टेब्लिश्ड, यू विल बी हैप्पी ओनली इफ़ यू लाइक द सब्जेक्ट. तो हिंदी संस्कृत तो किसी को पसंद नहीं कि हाँ हम हिंदी और संस्कृत के बन के रह जाएंगे. हाँ इंग्लिश के बन सकते हैं. जैसे हिंदी में देखिए आप वो कुमार विश्वास जी, इवन कैन नॉट बी कुमार विश्वास, लेकिन बहुत नाम, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होना, ये अगर आप हो तो इफ़ यू हैव सम एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ then it is your duty that you don't let it waste. My father used to say that the biggest crime in the world is to kill your passion, what आप में जो गुण है. तो अपने आप को डिस्कवर कीजिए. अच्छा ठीक है, आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सब नहीं चाहिए. इन दिस फील्ड itself you will find
आप डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, डेंटल में, आयुर्वेद एंड होम्योपैथ, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, देयर आर लॉट मेनी चॉइसेस। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ मुझे नहीं बनना था, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर ओनली बट आई डोंट हैव द कैपेसिटी नाउ, आई हैव वर्कड हार्ड एंड आई नो आई कांट गेट थ्रू, आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, कितनी तरह के कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो। खुद के स्पिरिट को बनाए रखो। चलो बच्चा, करो तैयारी। जब स्टेप बाय स्टेप आप एकदम शुरू से अच्छे से पढ़ते जाओगे, जो 11th के बच्चे हैं जिन्होंने अभी 11th में एडमिशन ली है, you start your preparation from now, then it will be a very beautiful journey with you कि स्टेप बाय स्टेप लाके आपको आखिर तक पहुंचा देना। And those who have now just 1 month left for the NEET exam, आप अभी से फिर तैयारी नहीं है, तैयारी शुरू कीजिए। अगले साल विद ब्राइट फेसेस आई वांट टू सी यू कि जिस तरह से दिस इज़ नॉट जस्ट अ जर्नी टूवर्ड्स एनी एग्ज़ाम, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ। बी अ हैप्पी पर्सन, बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आप सब खास हो, बस अपनी खासियत को दूसरे के साथ मत कंपेयर कीजिए। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ ना कि हाँ अच्छा उसकी खासियत दुनिया को अच्छी लगती है, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन उसको देख देख के आप वो अचीव नहीं कर सकते हो ना। बट यू हैव समथिंग जिसको लेके आप बहुत खुशी से आगे बढ़ सकते हो और खुश हो सकते हो, दुनिया को खुश रख सकते हो, and you can have a very good social status also. Wish you all a very, very bright future and the best of personality. Thank you, bachcha. Wish you all the best, everything, all the good things of the world.